That's fine. All right. Have you made the entry in the host file? No, no. Can you just go and make the entries in host file, please? Go in search. Here only. Yeah. No, 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 no. In Windows. Run command. Mr. Stuck. Yeah. Run. Yeah, you can type run here. Hmm. Okay. In run list. Open. No, 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 no. Don't open the notepad. Drivers. ERS. Here. No, 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 no. Hmm. No. Double E, no, no, only one E, Afrin. Drivers. Okay. Hmm. Driver data. Folder. Go to etc file. Folder. etc. Yeah. Copy this host file. Copy. Just copy. Okay. And go to your desktop and paste it over there. Yeah. Open with a notepad. Yeah. Open with notepad. All right. Now let me give it to you that entry file. Okay. Just copy and paste this to one. Yeah. Bottom And of the line, right? Enter, press enter. Last line, yes, paste. Yes, and save this file. That's it. Save this file. Mhm. Close this window. Close this host file, right? Go to desktop. Copy this file. first file. Yeah. Here you have okay, right? Copy this file. Yes. Copy it up and Yes. go to etc folder. Same. Open, right? From where you have copied first. Where I need to paste. Go to that folder which you have opened. etc folder host file that was there, right? Drivers program. Folder. Yeah. Here only. The second there. Hmm. And paste it here. Control V. Replace the file. Yes. Continue. Continue. Great. Okay. Now open the SAP. Yes. Type slash backslash n. Yeah. Backslash n. Backslash. Again that slash. Yeah. UI2. UI2. Then backslash. N. Again backslash. No. UI2. Hmm. Backslash. FLP. I think it looks like after slash n you have space, right? Or a dot. No, dot. No, no dot. No dot. Okay. Okay. Press enter. Allow. Remember my decision and allow. Advance. Yeah, it's fine. Advance.
Continue to S4 HANA, the link just below. Yeah. Okay. Save this. Yeah. Save it, this browser, right? In favorite or something. Okay. Somewhere you can just save it, right? No, not a problem. Okay, right. Just type it offering here, your user ID and the password, which you have just set. Sandeep is not going to join. Uh, I texted him, but no reply. Save. Yeah. Oh, hold on, hold on. It's opening, opening. Okay. So now this is here. The Fury apps is working for you. Okay. Once you have to do the same thing, right? Just check it out whether you Yes, will be yes, able to do that. Mukesh. Yeah. Okay. 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 So did you get a chance to create few orders? Actually, no. After this class, I will do today. Okay. I'm in Okay. work from Okay. home No problem. today, so I will do No it. problem. Okay. Can you just show me your this logon pad? Did you make the entry? Yeah. I do not see anything here. So yeah, I will do after some time. Okay. 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 No problem. So make it the entry for the ECC and S for as well, right? Yeah. Only. Okay. So ECC is 01 and S4 is 24. Okay. Oh, okay. Sure. All right. Hi, Sandeep. Can I stop streaming? Yeah. 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 Thank you. Okay. No problem. Now I'm sharing my screen to you and going forward. So here, let me open the S4. Okay. Again, let me go and open the few orders if you want to go and see the which orders. So VBAK is the table, and I'm just checking So this. where Any is orders? VBAK, that code? Sorry, come again. VBAK is the code for the table or something. Yeah, yeah. No, no. SC16N is the SC16N is the table transactions code to open the table. Okay. And VBAK is the table, but that table is for the sales document header data. Okay. So let me show you VA03 if I'm open. Now, here you can see this is sales order. In this sales order, let me go and show you. Okay, let me go and tell you architecture of sales document. So sales document will have three architecture. Okay. What are the architectures and how it looks like? So sales document will have header data, then item data, and another one is schedule line. Okay.
right? Here is the architecture. Now let's see to which content we are calling header data. Okay. Okay, so this is sales order. If you clicking here, it will give you the header data. Yeah. This is header data, right? You can click, this is header details. Mm. Even you can also go through here, header, and which tab you would like to go, that you can also navigate from here. But if you click on header data, it will give you the tabs respective of this. So header data, you can see this is ZOR. Okay. So header data is actually applicable for the sales document where it will decide through which it is being controlled. Okay. So here, if I'm going to say header data, it will be controlled through the sales document type. Here, it will be controlled through the sales document type. Sales document type. Okay. And the standard sales document type is OR, right? And what we are doing it, we are making because SAP is given OR, and the person who is actually created this document Hyundai credit sales, they have copied from OR and created ZOR. Okay, so we will create by copying OR like that the same way. But this header data is being controlled by sales document type, right? So now you can see most of the things are controlled under this GUR, right? Okay, this GUR is controlling the header data and it is applicable for the all line items. What does it mean by the all line items? Let's suppose if let's editing this. This is one material. Okay, and what is the material here? Let's see. This material is net weight is 25,000 kg, right? So if let's putting this material again and 1 kg, one pieces. This is 5 pieces. Let's suppose this is one more pieces, right? Now you can see this is 5 kg, and in 5 kg in 10 line items and in 20 line items. Okay, 5 and 10. Okay, 5. In That 10 5 line and items, 5, and another one is 25. Okay. So at the header level, what it would be reflect? Gross weight is like 30, right? Let's say it's a gross total weight is 30 kg. You understand this? Why it is telling 30 kg? Because one line items is 25 kg, right? Gross weight. And another line items is 5 kg. So 25 plus 5, it's a 30. So at the header level, we are actually getting it the details which is relevant for all the line items. Okay. So header data is actually applicable and relevant for all the line items. If I'm talking about the shipping conditions, that means shipping conditions is also applied for all the line items, right? If I put the delivery block here at the header level, that means it is at the header level delivery block is set. But we can also keep the delivery block at the line item level. What does it mean? That means other line items can be delivered, but these line items cannot be delivered. Okay. But header level, if you put it, it means both line items cannot be delivered. Okay. So now you understand what is header means. Okay. Let's suppose if my conditions is here 959,495. The first line item. Second line item is
1899. So it is near about 94 and 2. So it is near about 11,000 something, right? At the header level, you can see 11,000 something. What does it mean? At the header conditions level, I am checking it, it's a 11,000 something because whole line items is adding up and giving the as a whole representation. Okay. Uh, All right. So now you understand what is header relevance, what we are calling header. Okay. So now you also understand header is being controlled through the order type. That is ZOR, right? In a similar way, there is the second architecture, and this OR, see, sales document could be various type of the sales document. What does it mean by the various type of the sales document? It means sales document. If I'm talking about sales order, then it means sales order is the sales document, but quotation is also the sales document. Inquiry is also the sales document, right? Consignment process, consignment pickup is the another document. Rush order is another document. Contract is another sales document, right? But this all the behavior is something different than the sales order. Okay. Behavior for the other document like behavior of the other document like sales order, quotation, inquiry. These all are the sales document, but their behavior are different, right? How this behavior is actually identified, what the things the behavior is actually changing from one to another. So that is the responsible is their order type only. Okay. So order type is in different way so that their behavior is behaving like in a different way. Sales order is behaving like a sales order. However, the sales order is a sales document. Quotation is also the sales document, but sales quotation is behaving like little bit different than the sales order. And this behavior is controlled from the order type, which we are calling sales document type. Okay, right? That's fine. At the header level, it is controlled by the OR, is the standard one, and it is controlled from the sales document type. Now, the second architecture come into the sales document we are calling item data. What is item data? See, we can be dealing with the different materials, but each material and other materials may be behave differently, right? For example, can anyone give the examples like one material is behaving in a different way, other materials can behave like in a different way. How this is possible? Hmm. How this is possible? If same order, it should be in that. I mean, same behavior, right? So why it is? No, same material will be behaving like a same way. But here in the line item, one line items is like six material they have given. Suppose in another line items, we will have my other material. But my other line items and this line items behave in a different way. Their behavior will be different, right? Let's, for example, yes, of course, their behavior will be in a different way. This material is a tangible material, right? This material can be only delivered from the plant only. But we can also add some materials which is service relevant material, right? It is not tangible. It's a service material. We can just deliver the servicing over there. But for delivering the service, it is not required that it will be delivered from the warehouse or plant, right? So behavior would be something different. Some materials may be tangible, but some materials we are acting as like a packaging material, right? So their relevance is in a different way. Some materials can be text material, right? Their behavior is different from the tangible material. So you can understand that the at item level, material based on material
behavior can be varies. And these behaviors is actually varies and it is being controlled by whom? So it is being controlled by the item category. Here it is the item category. Okay. This is item category. So line items, item level, the behavior of each line items can varies and that varies can be controlled from the item category. Okay. And standard item category for the tangible material is 10. Let's suppose one material we do not have stock inside this, right? But you are ordering as the moment you punching the order and same order will go to the vendor and you asking them, hey, this material can you dispatch it from your side to my this customer? मैंने उसको अपने प्रीमाइसेस में लाया भी नहीं, है ना? मैंने उस मटेरियल को जो मेरे पास स्टॉक है नहीं, मैंने उसको अपने पास लाया भी नहीं और अपने वेंडर वेंडर मतलब जो मटेरियल को देता है हमें, है ना? और हम उसको फर्दर बेच देते हैं। मैंने उस वेंडर को बोला ऐसा कीजिए आप मुझे ना देकर आप मेरे कस्टमर इस पर्टिकुलर कस्टमर को भेज दीजिए, है ना? तो यहाँ पर तो मेरा बिहेवियर चेंज हो गया ना। एक मटेरियल को मैं अपने स्टॉक से निकाल रहा हूँ, दूसरा मटेरियल हम वेंडर से भेज रहे हैं, है ना? तो दो लाइन आइटम में बिहेवियर उनकी डिफरेंट हो सकती है। तो ये बिहेवियर चेंज होगा, ये कौन कंट्रोल करेगा? दैट वी आर कॉलिंग आइटम कैटेगरी। इज इट क्लियर? इट इज Yes. क्लियर, राइट? Yes. Yes. तो आइटम कैटेगरी से ये चूंकि अभी आप बिल्कुल बहुत ही नए हो, आपको थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए और मैं यही टर्मिनोलॉजी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि जब आप ये सब चीजें थोड़ा फैमिलियर हो जाओगे देन वी विल मूव इट फॉर द कॉन्फ़िगरेशन, तब आप समझ पाओगे कि अच्छा। और मैं जो भी अभी बता रहा हूँ ना, ये आप हर चीज को एक दूसरे से ये मान के चलो कि मैं कुछ ना कुछ रिलेट करने वाला हूँ आगे चलकर। इसलिए इसलिए आप उसको फोकस करके ये समझिए कि ये कहाँ पर जाकर रिलेट होगा। ठीक है? तो ऐसे क्या होगा कि आप एज अ स्टोरी लाइक यू विल अंडरस्टैंड, और जब स्टोरी लाइक आप जब देखोगे और इसको समझोगे तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनती जाएगी। ठीक है? तो ये डिसाइड किससे हो रहा है? लाइन आइटम कैटेगरीज। तो ऐसे ही इसमें बहुत सारे आइटम कैटेगरी होते हैं। टैन हो गया, टैप हो गया, टीई हो गया, लाइक देयर आर सो मेनी आइटम कैटेगरी। ऑर्डर की बात करें तो ओ आर हो गया, क्यूटी हो गया, क्यूटी फॉर कोटेशन इंक्वायरी हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट, लाइक दैट देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ द सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप। those which I am telling to you, it is given by the SAP स्टैंडर्ड में ये सब दिया हुआ है। और हम लोग क्या करते हैं कि उस स्टैंडर्ड से एक कॉपी कर लेते हैं और अपना कॉन्फ़िगरेशन बनाकर जो हमें बिजनेस को चाहिए उसके हिसाब से हम उसमें चेंजेस करके अपना उस बिजनेस के अनुरूप जो हमें चाहिए और उसको वो डिलीवर करना उसके हिसाब से हम उसको मॉड करके कॉन्फ़िगर करते हैं। वरना अगर मैं शुरुआत से ही स्क्रैप से ही ओआर का पूरा आर्किटेक्चर बनाने लगूंगा तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक साल में या 1.5 साल में मैं पूरा प्रोजेक्ट उसको डिलीवर कर पाऊँ। नहीं, एसएपी कुछ टेम्पलेट्स देती है, उस टेम्पलेट्स को हमें अपना कॉपी करके उसमें मॉडिफाई करके उन्हें डिलीवर करते हैं। दैट इज व्हाट द फंक्शनल वर्किंग से। ठीक है? One question. नेक्स्ट आप, या यस, So, यस yeah, गो अहेड। here sales document types are there, na? So four are there. So ORQT. In the same way, line item category also having three. So how नो नो, could we इट्स नॉट decide? थ्री। या इट्स नॉट थ्री, देयर आर It's सो more मेनी। than. Okay. It's Now more than, more than. how could we decide that? I mean, so this item category is this one, like that. Yeah, that is good question। तो ये हम लोग डिसाइड
करेंगे जब हम इसकी सेटिंग्स देखेंगे ना आइटम कैटेगरी की, तब मैं आपको बताऊं कि अच्छा ये आइटम कैटेगरी जो है वो किस वे में काम करेगा या क्या क्या कंट्रोल करेगा। ठीक है, क्यों कंट्रोल करने की वजह से इसकी बिहेवियर अलग है, तब आप जाकर समझोगे ये। ठीक है, अब जैसे ये सेल्स डॉक्यूमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट सेल्स डॉक्यूमेंट तो मेरा सेल्स ऑर्डर भी है, कोई डॉक्यूमेंट मेरा कोटेशंस भी है, लेकिन ऑर्डर कोटेशन की तरह बिहेव नहीं करता है या कोटेशन ऑर्डर की तरह बिहेव नहीं करता है, लेकिन दोनों को सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप है। आखिर में जब मैं इसको बनाऊंगा कॉन्फ़िगर करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में कि इसके अंदर क्या सेटिंग्स होती है कि सिस्टम समझता है कि अच्छा ये सेटिंग्स है, मतलब हमें कोटेशन की तरह बिहेव करना है। वो हम लोग सीखेंगे, ये जस्ट हम ओवरव्यू दे रहा हूं मैं। ठीक है, मैं इसमें कई बार आऊंगा, ये सेल्स ऑर्डर ही नहीं मैं बता रहा हूँ, आप बिल्कुल एक कहानी की तरह समझिए। सेल्स ऑर्डर तो जस्ट एन एग्जांपल है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो है वो धीरे धीरे बिल्डअप होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो हम लोग ये बता रहे थे कि आर्किटेक्चर में दूसरा जो है वो आइटम डेटा होता है जिसको आइटम कैटेगरी से कंट्रोल करते हैं। थर्ड वन इज वी आर कॉलिंग शेड्यूल लाइन। अब ये शेड्यूल लाइन क्या होता है, तो डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक शेड्यूल लाइन एक टैब होता है, तो ये शेड्यूल लाइन है। ठीक है, विच वी आर कॉलिंग शेड्यूल लाइन। ठीक है, अब ये शेड्यूल लाइन जो है, शेड्यूल लाइन आपको ये बताता है कि ये मटेरियल कब तक अवेलेबल हो जाएगा, इसकी पिकिंग पैकिंग और डिलीवरी करने में कितना समय लगेगा और कब तक हम डिलीवर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा कैलकुलेशन जो है वो शेड्यूल लाइन में होता है, और शेड्यूल लाइन में इसको भी कंट्रोल करने वाला कोई होगा, तो ये कंट्रोल होता है शेड्यूल लाइन आइटम कैटेगरी और शेड्यूल लाइन कैटेगरी भी अकॉर्डिंग दिस। ठीक है, तो ये हमारा शेड्यूल लाइन कैटेगरी कहते हैं, कैटेगरी। ओके, ये भी बहुत सारे हो सकते हैं, सीपी है, सीएन है, C0 है, लाइक दैट देयर आर सो मेनी, बट सबका एक अलग अलग रिलेवेंस है। ठीक है, ये हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट अभी आप समझिए कि सेल्स डॉक्यूमेंट के अंदर आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है, अब ये आर्किटेक्चर में जैसे अभी आपने बताया ना कि आप टेबल में गए और टेबल में कैसे जाना या कैसे किया, तो मुझे ये बताए कि हेडर का मोस्टली जो डेटा होता है वो कौन से टेबल में जाता है, वो जाता है VBA की। ठीक है, आइटम उसी तरीके से आइटम कैटेगरी का भी टेबल है ना, आइटम डेटा का भी टेबल है, तो वो जाता है VBAP। ओके, और ये जाता है VBAE। ओके, तो ये सब टेबल्स है। तो मैंने क्या किया, मुझे सेल्स डॉक्यूमेंट चाहिए था तो मैंने इस टेबल में गया और रैंडमली, चूंकि ऑर्डर बहुत कम ही बने हुए हैं, तो मैंने उसमें से कोई भी एक ऑर्डर उठा लिया और उस ऑर्डर को मैंने VA03 से ओपन कर लिया, जैसे यहाँ किया है मैंने। ठीक है, ओके, तो ये टेबल्स है और इसमें ज्यादातर जो हेडर के डिटेल्स है वो आपका ऑर्डर में बनते हैं और ये रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टोर होता है, अगर आप देखोगे तो 9495 इसका नेट वैल्यू है, तो ये देखो यहाँ पर स्टोर है, करेंसी यूरो में है, सेल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड डिविजन्स, ये सब सब चीजें हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया आर्किटेक्चर। उसी तरीके से जब सेल्स डॉक्यूमेंट के बाद डिलीवरी बनता है तो ये डिलीवरी डॉक्यूमेंट कहलाता है। और जो डिलीवरी डॉक्यूमेंट होता है इसके इसका भी एक आर्किटेक्चर होता है। इसमें आर्किटेक्चर होते हैं जिसको हम लोग डिलीवरी हेडर बोलते हैं या हेडर डिलीवरी है, डिलीवरी हेडर डेटा। ओके, ठीक है, और ये कंट्रोल किससे होगा, तो उसमें भी एक डिलीवरी डॉक्यूमेंट टाइप से होगा या डिलीवरी टाइप बोलते हैं। डिलीवरी डॉक्यूमेंट में भी आइटम डेटा होता है।
जिसको हम लोग डिलीवरी आइटम बोलते हैं। इसमें शेड्यूल लाइन नहीं होता है। ठीक है। और ये भी कंट्रोल होता है डिलीवरी आइटम कैटेगरी। ठीक है। इसमें शेड्यूल लाइन नहीं होता है। डिलीवरी के बाद जब हम बिलिंग बनाएंगे, जो आप सीख चुके हो कैसे बनता है, तो बिलिंग डॉक्यूमेंट में भी इसका भी आर्किटेक्चर होता है, जिसमें हेडर डेटा होता है, जिसको हम लोग बिलिंग डेटा बोलते हैं, बिलिंग हेडर। और इसके अंदर भी हमारा बिलिंग आइटम कैटेगरी होता है। ये भी कंट्रोल किससे होगा? तो बिलिंग टाइप से होगा। किससे होगा? बिलिंग टाइप से। ठीक है। ये कैसे होगा? तो ये भी बिलिंग आइटम कैटेगरी से। अब सवाल ये होता है कि इसमें स्टैंडर्ड में क्या क्या है, तो एल एफ है, एल आर है, लाइक दैट, देयर आर सो मेनी। ठीक है। आइटम कैटेगरी इसमें सेम ही होगा जो ऊपर है, टेन, टी ए पी, लाइक दैट। सेम कॉपी होता है आइटम से यहाँ पे डिलीवरी में। बिलिंग में क्या होता है? बिलिंग टाइप भी अलग अलग होते हैं। इसमें F2 हो गया, F2 टाइप, जिससे कंट्रोल हो रहा है। ओके, F8 हो गया, परफॉर्मा इनवॉइसेस। F5 हो गया, ऑर्डर रिलेटेड परफॉर्मा इनवॉइसेस, लाइक दैट। ऑर्डर रिलेटेड इनवॉइसेस F1। देयर इज बिलिंग टाइप ऑल्सो। तो डिफरेंट डिफरेंट बिलिंग टाइप से बिलिंग भी कंट्रोल होता है, जिसका हेडर कंट्रोल कंट्रोल होगा। बिलिंग आइटम में भी हमारे पास बिलिंग आइटम कैटेगरी होते हैं। इसमें भी वही होता है, टेन, टी, टी ए पी या टी ए, जो भी है, लाइक दैट। अब सवाल ये होता है कि क्या जिस तरीके से सेल्स डॉक्यूमेंट में सेल्स हेडर लेवल पे ये टेबल में सेव होता है, तो क्या डिलीवरी में भी इस तरीके से उसका टेबल होता है जहाँ हेडर का डेटा स्टोर होता है? तो यस, होता है। LIKP, LIPS। क्या बिलिंग में भी ऐसा ही होता है? तो यस, होता है। VBRK, VBRP। ठीक है। तो ये टेबल में सेव हो गए, इससे रिलेवेंट डेटा। ठीक है। अब आप लोगों को जब टाइम मिलेगा तो ECC में जब लॉग इन करना, तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाए होंगे उसको आप SC16 से खोलकर ये बिलिंग डॉक्यूमेंट आप डालना, और देखना है कि वहाँ डिटेल्स आ रहा है, क्या क्या डिटेल्स आ रहा है, थोड़ा उसको आप चेक करने की कोशिश करो। ओके। आप में से कितने लोग बनाए हो ऑर्डर? कौन सा आपने कितने ऑर्डर्स बनाए? डिड यू गेट अ चांस टू वर्क ऑन 5 क्रिएटिंग अ फ्यू ऑर्डर्स? चार पांच बनाए हो? या तो आपने कंप्लीट O2C साइकिल चलाया या जस्ट ऐसे ही सेल्स ऑर्डर बना के छोड़ दिया? O2C साइकिल चलाया, राइट? तो आप वहां पर देखना, VBRK में जाना, और जो भी ऑर्डर बनाया हुआ है ना, क्रिएटेड बाय योर ID डालना, तो देखना कि मैंने कितना बनाया, तो वो डिटेल आपको यहाँ दिखेगा। ओके ठीक है। VBRP में आपको उसके आइटम से रिलेटेड दिखेंगे चीजें। ये टेबल्स में खोल के देख रहा है थोड़ा सा। शुरू करना है आप लोगों को। तो ये आर्किटेक्चर ये तीन तरह के हो गए। ओके। नाउ अब हम लोग इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्या होता है और क्यों ये जरूरी है, या क्या क्या रिलेवेंस है इसका? इंटरप्राइजेस स्ट्रक्चर। ओके। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में, अच्छा ये बताइए कि मैंने ये सेल्स ऑर्डर बनाया। ओके। ठीक है, ये कितने मल्टीपल सेल्स ऑर्डर बन गए, है ना? मल्टीपल सेल्स ऑर्डर बने हुए हैं, मान लो सपोज दिस। अब आपको अगर ये बोलना जाएगा कि बताइए कि आपके सेल्स ऑर्ग में 15/11/2023 से, यानी 2023 से आज तक के डेट में कितना बिजनेस रन हुआ है ना? कितना, कितने बिजनेस दिए? ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे मल्टीपल ऑर्डर बनाने पड़ेंगे। तो जो भी मल्टीपल ऑर्डर अभी तक बना है, इसको आप यहाँ पर जाकर ऐसे अगर सम करोगे तो आप बता पाओगे ना कि मैंने अभी 99,678.75 का बिजनेस इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक दिया है ना। तो ये एक सेल्स ऑर्डर था, ऐसे ऐसे पूरे दिन सेल्स ऑर्डर बनेंगे। ठीक है। जब ये पूरे दिन सेल्स ऑर्डर ऐसे बनेगा तो आपको बिजनेस जो भी है, जो मैनेजमेंट लेवल पे है, वो एनालाइज करेंगे। वो एनालाइज करेंगे और वो क्या देखेंगे कि अच्छा, ये सेल्स ऑफिस, ये सेल्स ऑर्ग ने हमें इतना बिजनेस दिया, इस पर्टिकुलर डिविजन्स में या इस डिस्ट्रीब्यूशंस में मुझे इतना बिजनेस मिला, या इस सेल्स ऑफिस ने ये परफॉर्म किया, जो भी इसका निकलेगा मॉडल, है ना। तो इसके लिए जरूरत क्या है? इसके लिए जरूरत है कि ये सब सेटअप होना चाहिए, सेल्स ऑर्ग, सेल्स ऑफिस, बिजनेस एरिया जो भी है। तो ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ठीक है, ये आपका सेल्स ऑर्डर का हेडर का है, लेट मी गो एंड ओपन SC16N और वी VP AP आइटम लेवल पे, है ना, सेल्स डॉक्यूमेंट का आइटम लेवल। मैंने यही सब सारे सेल्स डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाल दिए। ओके। और डालकर ऐसे एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन सा प्लांट जो है वहां से डिस्पैचिंग ज्यादा हो रहा है या कौन सा प्लांट बिजी है, तो मैं क्या करूंगा, इन सब के प्लांट्स में जाकर देखूंगा कि कितने का निकल रहा है ये और कौन सा प्लांट से निकल रहा है, कौन सा प्लांट हमारा हो रहा है ना। यहाँ पे होगा प्लांट, लेट्स सी वेयर इज प्लांट, कि इतने का ये कॉस्ट इतना बैठा है, नेट प्राइस इतना आया है, वेयर इज प्लांट, ये HUP1। तो HUP1 से ये प्लांट से हमें इतना डिस्पैच हो रहा है, जिसमें काफी इतना कॉस्ट बैठा है, इतना मेरे को इतना रेवेन्यूज आया है। तो ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्यों? क्योंकि ये सब चीजें जब कैप्चर होगा सेल्स ऑर्डर में, तभी तो हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे और उसके बेस पे रिपोर्ट से पता चलेगा कि कितने का बिजनेस आया, यहाँ पे कैप्चर हुआ है ना समथिंग। ये देखो, ये सेम है, ये ट्रांजेक्शन्स, ये ट्रांजेक्शन्स में मेरा सेल्स एरिया HUS1H1 आया, ये ट्रांजेक्शन्स में मेरा HUS1H1 आया। तो मैं जब इसको रिपोर्टिंग निकालूंगा तो बताऊंगा ना कि ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन से मेरा इस डॉक्यूमेंट से इस पर्टिकुलर दिन में इतना ट्रांजेक्शन हुआ है, या इस महीने में मेरा इतना टारगेट रखा गया था, इतना टारगेट अचीव हुआ है, सेल्स ऑर्डर पंच नहीं हो रहे हैं। तो बिजनेस मैनेज जो मैनेजमेंट लेवल है, वो फिर अपने स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं कि अच्छा, मुझे क्या करना चाहिए, सेल्स बढ़े, हमें प्रमोशन करना पड़ेगा या फिर हमें कुछ और ऑफर देने पड़ेंगे सेल्स को और बढ़ावा देने के लिए, राइट। तो इन सबों के लिए सबसे कॉमन चीज क्या है कि इंफॉर्मेशन शुड बी कैप्चर्ड प्रॉपरली इनटू योर डॉक्यूमेंट। एम आई करेक्ट? इज इट गुड टू Yes. गेटिंग मी राइट? तो ये सब Yes. इंफॉर्मेशंस जब तक कनेक्ट नहीं होगा, जब तक इस पे कैप्चर नहीं होगा, वी कैन नॉट टेक द रिपोर्टिंग प्रॉपरली, राइट। और रिपोर्टिंग नहीं निकलेगी तो हम लोग स्ट्रेटेजीज मैनेजमेंट लेवल पे नहीं बना पाएंगे, और जब बना नहीं पाएंगे तो फिर हमारा सेल्स भी उतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा, है ना। तो ये सब चीजें हमें कैप्चर करते हैं। तो कुछ चीजें जो कैप्चर करते हैं, वो हम लोग ऑर्ग स्ट्रक्चर लेवल पे भी कैप्चर करते हैं। जैसे कि हमारा बिलिंग डॉक्यूमेंट या हमारा कंपनी कोड क्या होगा, तो मेरा कंपनी कोड ये है। ठीक है। मेरा जो शिपिंग होगा, प्लांट होगा, या कहीं कहाँ से ये डिस्पैच हो रहा है, राइट। ये कहाँ से डिस्पैच हो रहा है, तो इसमें प्लांट का सेटअप होना चाहिए, शिपिंग पॉइंट का सेटअप होना चाहिए, किस रोड से जाएगा, ये सब सेटअप होने चाहिए। स्टोरी लोकेशन, किस स्टोरी लोकेशन से ये डिलीवर्ड होगा। ये सब चीजें, कुछ जो चीजें हैं जो ऑर्ग स्ट्रक्चर लेवल पे हमें सेटअप करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें बिजनेस जो ऑलरेडी चल रहा है उसके हिसाब से हमें मोल्ड करना पड़ेगा, राइट।
So that we are calling enterprise structure. ठीक है, अब हम लोग enterprise structure में देखते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं, और हम लोग इसी बेस पे हम एक प्रोजेक्ट बनाने चाहेंगे, बनाऊंगा। तो आप लोग इन चीजों को बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि जस्ट सिस्टम नॉलेज इज नॉट वर्थ इट। आपको एक मैं व्यू भी दे रहा हूँ या देने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिजनेस जब भी कोई रन करता है तो वहां पर कैसा माहौल होता है, या अ, उसमें क्या टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं, वो सब सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको फील करवाने की कोशिश करूंगा थ्रू प्रोजेक्ट। ओके, तो वहां पे जैसे आएगा कंपनी। अब कंपनी क्या है? तो कंपनी, यू कैन से it's a group of some peoples, right? Some business partner is associated in the company and they are running their business, right? तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कंपनी को बोलूं, तो जैसे मान लो सपोज टाटा ग्रुप है, तो टाटा ग्रुप इज अ कंपनी, राइट? तो एंड अनदर वन इज कंपनी कोड। कंपनी कोड, ये सब टर्मिनोलॉजी आप सीखोगे इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में आपको लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ताकि जब आप मटेरियल जब आप पढ़ोगे, इफ यू आर नॉट स्पीकिंग यू कैन कीप योर म्यूट, बिकॉज गोइंग समथिंग आ रहा है मेरे मेरे पास। इफ यू हैव सम क्वेश्चन प्लीज आस्क मी, राइट? कंपनी, अब ये कंपनी क्या है? तो जैसे टाटा ग्रुप है, तो टाटा ग्रुप में बहुत सारे बिजनेस पैरेलली चलते हैं, जैसे टाटा मोटर्स, टाटा सॉल्ट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, so many are there, right? But these are all the company code, you can say. But कंपनी क्या है? तो टाटा ग्रुप है ना? तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि HIER एक कंपनी बनाएंगे, और उसका सिनेरियो इस तरीके से होगा कि ये कंपनी जो है, मल्टीपल बिजनेस है इसका, ठीक है? मान लो हायर सीमेंट भी है, हायर फार्मास्यूटिकल्स भी है, हायर अप्लायंसेस या जो है एयर कंडीशनिंग भी है। तो एयर कंडीशनिंग हम एक मान के चलते कि इंडिया में बिजनेस कर रहा है, ठीक है? तो हमने क्या किया कर रहे हैं कि एक कंपनी कोड HIER हम लोग बनाने जा रहे हैं। बट व्हाट डज इट मीन बाय द कंपनी कोड? ठीक है, कंपनी कोड क्यों जरूरी है? कंपनी कोड होता क्या है? तो कंपनी कोड जो होता है, दिस कोड which we are calling company code is the responsible for calculating their own profit and loss statements, और it's a legal entity, ठीक है? अब लीगल एंटिटी का मतलब क्या हुआ? लीगल एंटिटी का मतलब ये हुआ कि ये कंपनी कोड अगर रनिंग कर रही है बिजनेस इंडिया में, तो अगर इसके कुछ भी प्रोडक्ट्स में खराबी आती है, और हमें इस प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में मुझे लीगल एक्शन लेना है, कोर्ट में जाना है, इसके अगेंस्ट में मुझे FIR करवानी है, कोर्ट जाना है, केस लड़ना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट से मुझे कुछ हार्म हुआ है, तो मैं समथिंग वी कैन ब्लेम टू देम, राइट? कि कौन होगा रिस्पॉन्सिबल? तो वो होगा उसका कंपनी कोड, ठीक है? तो कंपनी वाले अपने कंपनी कोड के रिस्पेक्टिव में लॉयर रखते हैं, और वो उनके अगेंस्ट में कुछ भी चीजें आती हैं तो उनका सेटलमेंट करवाते हैं, या कुछ फ्रॉड होता है समथिंग, तो वो लीगल एक्शन लेते हैं। तो हम लोग लेंगे उस कंपनी कोड के अगेंस्ट में, ठीक है? अब चूंकि इंडिया से प्रोडक्ट खरीदा था, तो इंडिया का कंपनी कोड है, लेकिन यही कंपनी अगर नेपाल में भी वर्क करता है, तो मैं वहां के कोर्ट में जाकर नेपाल के कंपनी कोर्ट पे जाकर मैं ब्लेम नहीं कर सकता। तो समवन इज देयर इन कंट्री, जो लीगल एंटिटी उसका कैलकुलेशंस करती है, और हम एक्शन ले सकते हैं, तो वो इंडिया में ही कंपनी कोड जो इसको चला रही है उसके अगेंस्ट में हम ले सकते हैं।
ये कंपनी कोड भी क्या करेगी कि वो कैलकुलेट करेगी कि अच्छा इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लागत हुआ, इतना इस बार इतना टर्नओवर रहा, इतने प्रॉफिट मार्जिन रहा इस साल का, हमारा टारगेट क्या रहेगा। तो दिस ऑल थिंग्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द कंपनी कोड, दैट्स व्हाई दिस कोड इज इंपॉर्टेंट। ओके, कंपनी हो गया, कंपनी कोड हो गया। दूसरा, कंपनी कोड, चार्ट ऑफ अकाउंट या क्रेडिट कंट्रोल चार्ट ऑफ अकाउंट बोलते हैं। कंपनी कोड, क्रेडिट कंट्रोल एरिया, क्रेडिट कंट्रोल एरिया। ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल एरिया इज आल्सो द एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। अब क्रेडिट कंट्रोल एरिया क्या हुआ कि अगर उस कंपनी से हम एसोसिएट हुए हैं, मैं कस्टमर हूं और मैं चाहता हूं कि मुझे वो कंपनी कुछ क्रेडिट लिमिट दे। ठीक है, मैं उनसे बिजनेस से एसोसिएट हुआ हूं, तो कंपनी बोलती है आप ऐसा कीजिए, आप मेरे से माल खरीदिए, मैं आपको 50,000 तक क्रेडिट लिमिट देता हूँ, आप मुझसे जो भी है आप वो खरीदिए। तो जैसे ही 50,000 से एक्सिट करेगा, मैं कोई भी ऑर्डर करूंगा वो ब्लॉक लग जाएगा। ठीक है, आप कहोगे कि ठीक है, आपका पुराना जो बकाया है आप जो है उसको आप क्लियर कीजिए, ताकि मैं आपका क्रेडिट लिमिट जो है वो इंक्रीज करूंगा, है ना। तो समथिंग इज देयर विच कैन बी कंट्रोल देयर क्रेडिट थिंग्स, राइट, सो दैट वी आर कॉलिंग क्रेडिट कंट्रोल एरिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने क्रेडिट कंट्रोल एरिया को भी HIR ही रखने वाला हूँ, राइट, दिस इज फाइन। ये जो चीजें हैं, ये नॉर्मली कौन करता है, ये हम लोग नहीं करते, ये फिनेंस गाइज करते हैं, फिनेंस वाले करते हैं, ये सब सब फिनेंस वाले करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें अपना प्रोजेक्ट बनाना है, तो फिनेंस वाले तो है नहीं यहाँ पे कि वो हेल्प करेंगे आपकी, इसलिए हम लोग खुद ही बनाएंगे ये सब सारी चीज। ठीक है, इट्स क्लियर। क्रेडिट कंट्रोल एरिया, कंट्रोलिंग यूनिट, कॉस्टिंग वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ये भी फिनेंस का ही काम है, ये भी काम फिनेंस ही करेंगे, वो भी मैं बनाऊंगा HIR करके। ओके, नाउ these are all things can be done by the finance guy, you know, not to worry about it कि ये कौन बनाएगा और ये कैसे बनाएगा, किसका काम है। but in a real scenarios finance guy will create, but in this project level we will do it, this everything, क्योंकि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। until unless आप वो ऑर्डर में ये सब चीजें कैप्चर होता है, जिसके लिए हमें ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं मेरा ऑर्डर नहीं पूरा आर्किटेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं जिसको हम लोग अ, बोल सकते हैं प्लांट। ठीक है, व्हाट इज प्लांट। सो प्लांट इज अ स्टोरेज प्लेस वेयर वी कीपिंग आवर स्टॉक, और इट इज द प्लेस वेयर द मटेरियल इज dispatching to the customer, or it is coming from the vendor. So it is like a storage place, right, where we keep our stocks over there. Okay, तो हम लोग यहाँ पे दो प्लांट रखने वाले हैं। ठीक है, एक प्लांट रखेंगे लेट सपोज GZ00, और दूसरा प्लांट रखेंगे BLR 0। अब BLR 0, GZ00 मतलब एक प्लांट मेरा गाजियाबाद में है, जिससे मेरा पूरा बिजनेस जो है नॉर्थ और ईस्ट साइड कवर करता है गाजियाबाद प्लांट से, और एक प्लांट मैं रखा हूँ बैंगलोर बेलारी में, जिससे मेरा साउथ और वेस्ट रीजन इंडिया का कवर हो जाएगा। ओके, प्लांट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टोरेज लोकेशन। अब ये स्टोरेज लोकेशन क्या होता है, तो प्लांट के अंदर ना, ये जैसे मान लो ये प्लांट है, इस प्लांट के अंदर अलग अलग जो सेक्शन हो सकते हैं जहां पर हमारा स्टोर करके रखते हैं, वो लोकेशंस को हम लोग कहते हैं स्टोरेज लोकेशन। ये लोकेशन क्या हो सकता है, तो एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम फिनिश्ड गुड को रख रहे हैं,
कहीं और एक ऐसा जगह है जहां पर हम रिटर्न जो मटेरियल आ रहा है वहां रख रहे हैं। एक ऐसा जगह है जहां पर हम क्वालिटी इंस्पेक्शंस के लिए वहां पे कुछ स्टॉक्स रखे हुए हैं जहां पे क्वालिटी इंस्पेक्शंस हो रहा है। कुछ ऐसा भी जगह हो सकता है जहां पर हम लोग का रॉ मटेरियल आ रहा है ना। तो वो लोकेशन जो प्लांट के अंदर में होता है, दैट वी आर कॉलिंग स्टोरेज लोकेशन, राइट। तो हम लोग यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन जो बनाने वाले हैं, वो एक लोग स्टोरेज लोकेशन बना रहे फिनिश्ड गुड का, जहां पर हम फिनिश्ड गुड तैयार रखेंगे और इस फिनिश्ड गुड से हमारा माल डिस्पैच होगा या स्टोर होगा। ठीक है, so far it's good. Any question so far? Please ask me if you have anything. Sandeep, Mansa, Afreen. No, Mukesh, for me. So far it's good, right? क्योंकि जितना आप इंटरेक्ट करोगे ना, उतना ज्यादा ही आपको थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि अच्छा ये इसका क्या रिलेवेंस है या क्या है। स्टोरी लोकेशंस फिनिश्ड गुड, हम मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको इसके बारे में भी बता रहा हूँ और क्या करने जा रहे हैं, जो एक प्रोजेक्ट का मैंने सोचा हुआ है उसको मैं सिस्टम में इस तरीके से बनाएंगे। ये मैं आपको एक तरीके से आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरीके से मेरा बिजनेस चलेगा। ठीक है, प्लांट हो गया, स्टोरेज लोकेशन हो गया। अनदर वन इज शिपिंग पॉइंट। ये शिपिंग पॉइंट क्या होता है? तो प्लांट तो एक जगह में हो गया, राइट, लेकिन इस प्लांट के अंदर जैसे मान लो ये एक प्लांट हो गया, ओके, लेट्स सपोज दिस इज माय प्लांट। अब इस प्लांट के अंदर यहाँ पर जो है एक गेट है ना। लेट्स सपोज यहाँ पर एक गेट है और एक गेट इधर है। ठीक है, तो ये गेट इन वाला गेट है और ये गेट आउट वाला गेट है। ठीक है, इन वाला गेट मतलब इधर से रॉ मटेरियल आता है, इस गेट से एंट्री होती है ट्रक, यहाँ पर लोड वोड होता है, राइट, या अनलोड होता है। लेकिन जब हमारा आउटबाउंड डिलीवरी होगा तो ये ट्रक यहाँ आएगा और इधर से इस गेट से निकलेगा। तो यहीं पर एक छोटा सा ऑफिस भी हो सकता है या बड़ा सा भी ऑफिस हो सकता है ना। एक तरीके से ऑफिस होता है। तो ये पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि ये एक शिपिंग पॉइंट है। यहाँ से मटेरियल डिस्पैच होना शुरू होगा, तो जो ट्रकें होती हैं वो जब लोड हो जाएगा तो वो अपने साथ डॉक्यूमेंट को लेकर जाएगा, तो ये उसका ड्राइवर यहाँ से दौड़कर यहाँ पर इस ऑफिस में आएगा और बोलेगा कि मुझे इसका बिल्टी वगैरह चाहिए, इनवॉइस वगैरह चाहिए। तो यहाँ पर शिपिंग वाले जो पॉइंट जो ऑफिसेस वाले हैं वो क्या करेंगे, यहीं पर वो लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन वाला काम करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये पिक हो गया, पैक हो गया, यहाँ से वो पीजीआई कर देंगे। यहीं पर बैठा हुआ बंदा पीजीआई करेगा सिस्टम में, और यहीं पर बिलिंग सेक्शन वाला भी दो बंदे होंगे, तीन बंदे होंगे, या हो सकता है कि और भी बंदे हो, तो वो उसने बिलिंग निकाल कर उस ड्राइवर को दे दिया और वो ड्राइवर बिलिंग लेकर बाहर निकल गया। तो यहाँ पर कोई एक ऑफिस टाइप का होगा, दैट वी आर कॉलिंग शिपिंग पॉइंट। ठीक है, जो हम लोग एसडी लेवल पे बोलते हैं शिपिंग पॉइंट, लेकिन एमएम साइड से मटेरियल जो है वो वेंडर से आ रहा है रॉ मटेरियल, तो वो इनवर्ड होगा, राइट। तो हम लोग इसको एमएम साइड से रिसीविंग पॉइंट बोलते हैं, रिसीविंग पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसको बोलते हैं शिपिंग पॉइंट। गॉट इट। तो शिपिंग पॉइंट और रिसीविंग पॉइंट बोथ आर सेम होता है। और एक प्लांट के अंदर एक शिपिंग पॉइंट भी हो सकता है और मल्टीपल भी शिपिंग पॉइंट हो सकते हैं। तो प्रोबेबली यू मे हैव द सम क्वेश्चंस कि अच्छा, शिपिंग पॉइंट मल्टीपल भी हो सकते हैं, तो क्या सिचुएशन या क्या सिनेरियो ऐसा होगा जिसमें शिपिंग पॉइंट अलग हो सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक जॉनसन कंपनी है, ओके,
जॉनसन कंपनी का ये पूरा प्लांट है, बहुत बड़ा सा प्लांट है। ये इस प्लांट में क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है टाइल्स भी, टाइल्स और क्या, बाथरूम फिटिंग्स, राइट, बेसिन्स वगैरह ये सब बन रहे हैं। और दूसरा इसी में एक और प्लांट है जहां पर जॉनसन एंड जॉनसन का ग्लासेस बन रहे हैं, ग्लासेस जो कांच होता है वो बन रहा है, राइट। अब यहाँ से हमारा जो जा रहा है इस शिपिंग पॉइंट से, तो ये शिपिंग पॉइंट से सिर्फ अलाउड है कि आप यहाँ से सिर्फ वही कांच जो बाथरूम फिटिंग्स है वही निकाल पाए, क्योंकि इसके लिए हमने एक अलग दो रास्ते बना रखे हैं जहां से सिर्फ हमारा कांच वाला ही निकले। तो ऐसा भी हो सकता है सिनेरियोस कि उस गेट से सिर्फ कांच वाला ही निकले, क्योंकि उनको बहुत एक्स्ट्रा हैंडल करके ले जाना पड़ता है। स्पेशल टाइप्स ऑफ लॉरी आती है और उसको पूरे अच्छे से संभाल के उसको ले जाना पड़ता है। तो लाइक दैट दिस कैन बी ऑल्सो द सम सिनेरियोस। तो ये जरूरी नहीं कि एक प्लांट के अंदर एक ही शिपिंग पॉइंट हो, वो मल्टीपल भी हो सकते हैं। दिस इज नाउ प्रीटी मच क्लियर द सिनेरियोस। तो हम लोग यहाँ पर एक ही शिपिंग पॉइंट रख रहे हैं, और वो सेम शिपिंग पॉइंट एच क्या रख रहे हैं, GZ00 और BLR 0। एक प्लांट के अंदर एक ही शिपिंग पॉइंट GZ00, और एक ही BLR बेलेरी, बेलारी में भी हमारा शिपिंग पॉइंट एक ही है। ये जो पार्ट हम कर रहे हैं प्लांट, ये एक्चुअली बनाते हैं वाले, ये बनाते हैं वाले। शिपिंग पॉइंट जो है वो या SD, ये लॉजिस्टिक्स वाले काम करते हैं। तो लॉजिस्टिक्स की बात करें तो लॉजिस्टिक्स में भी आता है और SD भी आता है। तो इसमें कोई भी बना सकता है, ठीक है। ये लॉजिस्टिक्स का पार्ट आता है। अब आते हैं हम लोग प्योरली सेल्स में। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, ये हम लोगों का पार्ट है जिसको हम लोग टिपिकली SD का पार्ट। अब सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे प्रोडक्ट को क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और सर्विस कर रहे हैं, तो वो समथिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग देयर सर्विसेज एंड सेल्स। तो हमारा HIR एक कॉर्पोरेट ऑफिस है जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंडिया में ही है। और इसका कॉर्पोरेट ऑफिस मान लो सपोज मुंबई है, वहीं से सारा कंट्रोल होता है इसका। इसका जो हेड, ये बोल सकते हो कि हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये सब सब टर्मिनोलॉजी सुने हो, सुन चुके हो ये सब। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल याद है आपको जब आप क्रिएट करते थे सेल्स ऑर्डर। हाँ देखिए यहाँ पे डालते थे ना, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन, है ना, याद है? तो मैं इसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात कर रहा हूँ। ये सब सब इंटरप्राइज स्ट्रक्चर का पार्ट है, और इसके बारे में समझना ज्यादा जरूरी है कि आप ये बना क्यों रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, you can say, through which channel you are distributing your goods and services, right? जैसे आप ये इंटरनेट के थ्रू भी सेल्स कर सकते हो, होलसेलर या डीलर के थ्रू चैनलाइज वे में आप सेल कर रहे हो, या आप बिजनेस टू बिजनेस सेल कर रहे हो,
या बिजनेस टू कस्टमर सेल कर रहे हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कुड बी एनीथिंग, राइट? क्योंकि जब आप रिपोर्टिंग करोगे तो ये किस लेवल पे आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा, इससे ये पता चला है कि अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से मुझे इतना बिजनेस मिला है। ओके। या इस ये वर्टिकल से हमें इतना, अभी जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल H1 है, तो यहाँ पर अगर मुझे मान लो सपोज लॉट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स कुड हैव H1 H2 H3 H4, तो मैं यहीं पे फिल्टर लगाता तो देख लेता ना कि H1 में मेरा इतना आया है बिजनेस, H2 से मेरा इतना बिजनेस आया है, ये फिल्टर लगा के H3 से मेरा इतना बिजनेस आया है। तो मतलब ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से मेरा अच्छा इनकम हो रहा है या कम हो रहा है, वी कैन एनालाइज दिस थिंग्स। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास सेल्स ऑर्डर में कैप्चर हो डिटेल्स, और वो कैप्चर डिटेल्स के लिए हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए मैं मान लो सपोज रख रहा हूँ एसी के लिए। ओके। यहाँ पे सिर्फ हम एसी को बेच रहे हैं सपोज, क्योंकि हो सकता है कि कल को मेरे पास ऐसा प्लान हो कि अब हम लोग न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसमें अब हम लोग एसी के अलावा अब हम फ्रिज भी डाल रहे हैं। तो फ्रिज हमने एक नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होम अप्लायंसेस का इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन जब वो सेलिंग होगा एसी का और फ्रिज का, और हमें अगर फ्रिज का निकालना होगा तो हम लोग डिफरेंट लेवल पे उसको सेग्रीगेट कर लेंगे, राइट? तो उस बेस पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बना रहा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किस वे में रखते हो। आप अपने बिजनेस के वर्टिकल्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करके रख सकते हो, या आप किस चैनल के थ्रू बेच रहे हो वो भी आप बाइफर्केशन उस वे में कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू कि रिपोर्टिंग आपको कितना सेग्रीगेट तरीके से चाहिए। तो मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एसी रखूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ एसी में डील कर रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिवीजन। ठीक है, डिवीजन। अब ये डिवीजन क्या है? तो डिवीजन इज द ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, एसी ले लिया। अब एसी में मान लो दो ग्रुप्स आते हैं मेरा, एक विंडो आता है और दूसरा आता है मेरा स्प्लिट। ठीक है, तो मैंने ताकि अगर मुझे अगर कल को निकालना भी पड़ेगा कि मेरा बिजनेस किस में अच्छा हो रहा है, तो मैं उसके प्रोडक्ट्स से निकाल सकता हूँ, राइट? तो कि कितना मेरा बिजनेस हो रहा है, ये प्रोडक्ट का अच्छा से हो रहा है। तो इस वे में हम लोग उसका सेग्रीगेट करके निकाल सकते हैं कि अच्छा ये डिवीजन से हमारा ये निकल रहे हैं, राइट? तो मैंने यहाँ पे रखा है स्प्लिट एसी, SL फॉर स्प्लिट, और WN फॉर विंडो, राइट? नाउ नेक्स्ट आते हैं हम, ये सब सब SD वाले का था। ठीक है। डिविजन्स के बाद हम आते हैं सेल्स ऑफिस। अब ये सेल्स ऑफिस क्या है? तो हेड ऑफिस में, या हो सकता है कि आपने अपना सेल्स ऑफिस बना रखा है, इट इज एन जियोग्राफिकल एरिया वेयर योर ऑफिस इज लोकेटेड। ओके। तो आपने इनका बिजनेस को रन करने के लिए, क्योंकि आप जानते हो कि मेरा प्लांट गाजियाबाद में है और दूसरा बेलारी में है, लेकिन आपने क्या किया कि हर स्टेट में एक ऑफिस खोल रखा है। ठीक है, ताकि आप इस प्लांट के लिए इस सेल्स ऑफिस से आप डीलिंग करोगे। ऐसा भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर अ, दो ऑफिस मान लो खोल लेता हूँ, राइट? एक नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में कोई भी एक जगह पे खोला जिससे पूरा नॉर्थ ईस्ट में कंट्रोल होगा, राइट? वहाँ पे जितने भी सारे एग्जीक्यूटिव हैं वो सब सब रिपोर्टिंग इस ऑफिस में करें। ये ऑफिस हो सकता है मेरा मुंबई में हो, जिससे वो सारा कंट्रोल हो रहा है, या
एक नॉर्थ ईस्ट में खोला और दूसरा जो है हमने मान लो साउथ वेस्ट में खोल दिया। ठीक है, साउथ वेस्ट, ये मेरा मान लो सपोज मुंबई में है, और ये मेरा प्लांट में नहीं बल्कि बैंगलोर में या हैदराबाद में, कहीं पे भी है, हैदराबाद में। ठीक है, ये दो ऑफिस, राइट। सेल्स ऑफिस के बाद आता है सेल्स ग्रुप। अब ये सेल्स ग्रुप क्या होता है, तो अ ग्रुप ऑफ पीपल हु इज एक्चुअली वर्किंग इनसाइड द ऑफिस। ठीक है, तो उस ऑफिस के अंदर एक ग्रुप है। तो मान लो आप सपोज नॉर्थ ईस्ट में आप डीलिंग कर रहे हो, तो कौन से ग्रुप, एसी स्प्लिट और विंडो का कर रहे हो, तो आपने वहां पे एक क्या किया है, ग्रुप बना रखा है कि यार ये टीम जो है ना ये विंडो पे ही फोकस करेगी और पूरा नॉर्थ ईस्ट में विंडोज वाले एसी को प्रमोट करेगी। तो आपने क्या किया हुआ है कि आपने एक स्प्लिट ग्रुप बना रखा है, नॉर्थ ईस्ट एसएल ग्रुप। ओके, दूसरा आपने बना रखा है मान लो नॉर्थ ईस्ट विंडो ग्रुप, विंड 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 ग्रुप। ओके, उसी तरीके से आपने यहाँ पे क्या बना रखा है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट एसएल ग्रुप। ठीक है, और साउथ वेस्ट विंडो ग्रुप। ठीक है, उनकी एक पर्टिकुलर टीम है जो इस ऑफिस में या पर्टिकुलर ऑफिस में जाकर वहां पे रिपोर्ट करती है, और ये पूरे मार्केट में घूमती है, घूमते हैं, और वहां से ऑर्डर पंच करते हैं, और वहां से सीधा डायरेक्टली आप ऑर्डर लगाते हो और ऑर्डर का डिस्पैच होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज कंप्लीटली डन बाय द एसडीओ। ये एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में अब आप देख सकते हो कि कौन चीजें कहाँ पर है, उसको रिलेट कर सकते हो, हाउ यू कैन रिलेट इट। let me go to open my sales order slash n VA03। ये एक, जब फॉर एग्जांपल एक सेल्स ऑर्डर ले लिया, और इसमें अब हम आते हैं, कंपनी कोड दिखा दिया मैंने, तो देखो कंपनी कोड कहाँ दिखेगा मेरा, ये हेडर में गए, बिलिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपको कंपनी कोड दिखेगा। जब हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे तो यहाँ पर क्या दिखना चाहिए, HIER। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ट्रेड कंट्रोल एरिया वगैरह जो है वो ठीक है, इट्स फाइन। कंट्रोलिंग प्लांट, प्लांट कहाँ दिखेगा, तो लाइन आइटम डेवलप पे, तो हमारा प्लांट यहाँ पर दिखेगा इस साइड पे। ठीक है, और यू कैन से डबल क्लिक करेंगे हम लाइन आइटम पे, तो शिपिंग में गए तो हमारा प्लांट यहाँ पर दिखेगा, इधर GZ00 और BLR0। ये डिपेंड करता है कि हमारा कहाँ से डिस्पैच हो रहा है, उसके पीछे का लॉजिक कैसे होगा डिटरमाइन, तो ये सब चीजें देखेंगे। स्टोरेज लोकेशन हमारा यहाँ पर आएगा, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, राइट, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन, ये सब चीजें जो है हमें कहाँ दिखेगा, यहाँ पे जो है सेल्स एरिया, इस कॉम्बिनेशन को सेल्स एरिया भी कहते हैं, है ना। तो ये हमारा उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर दिखना चाहिए, है ना। HIRACSL और समथिंग। सेल्स ऑफिस, सेल्स ऑफिस कहाँ दिखेगा, तो यहीं पे दिखेगा आपका सेल्स ऑफिस दिखेगा, सेल्स ऑफिस यहाँ दिखेगा, सेल्स ग्रुप यहाँ दिखेगा। और इससे हम लोग जब रिपोर्टिंग करेंगे तो इस सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में सेल्स ऑफिस आएगा, और ऐसे ऐसे कई सारे और डॉक्यूमेंट बनेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर सेल्स ऑफिस ने इतना परफॉर्म किया है पर्टिकुलर डे के पीछे, जो भी ऑर्डर क्रिएट हुई, या ये सेल्स ग्रुप अच्छा कर रहा है, या ये सेल्स ग्रुप अंडर लो परफॉर्मेंस शो कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये सब सारी चीजें जो है यहाँ पे आप लोग देखें। अभी तक यहाँ पे कोई भी ऐसा लग रहा है तो प्लीज आस्क मी।
संदीप, कौन सा? Yeah, we got it, Mukesh. But actually, so when we go through that, I mean, tool again, right? So that maybe we या will get some ये questions. या ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। अब हम लोग जो है, अब जो हम लोग करने वाले हैं, वो अब समझ रहे हो कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हम लोग एक, अब सेल्स ऑर्डर का पूरा आर्किटेक्चर बनाने जा रहे हैं एज अ प्रोजेक्ट। अभी तक तो मैंने जो आपको बताया कि सेल्स ऑर्डर कैसे रन होता है, बट मैं अब ये बताऊंगा कि सेल्स ऑर्डर का पूरा आर्किटेक्चर कैसे बनाएंगे। अब जो ये काम करने जा रहे हैं, ये कंप्लीटली डेवलपर का काम है या फंक्शनल कंसल्टेंट का काम। ठीक है, तो हम लोग शुरू करें एंटरप्राइज स्ट्रक्चर्स पे काम करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और अभी जो मैं ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, जिसका ट्रांजेक्शन है SPRO। ठीक है, इस ट्रांजेक्शन्स का ऑथराइजेशन सिर्फ डेवलपर के पास होता है। ये एंड यूजर या जो रेगुलर जो बिजनेस करते हैं या बिजनेस में जो डेली सेल्स ऑर्डर बना रहे होते हैं, उनके पास ये सब का ऑथराइजेशन नहीं होता है, SPRO वगैरह का। ठीक है, तो SPRO के थ्रू जब हम जाएंगे, मतलब कि अब हम लोग डेवलपर वाला काम कर रहे हैं, एज कंप्लीटली डिफाइन करने वाला। SPRO में जाएंगे, एंटर किया, SAP रेफरेंस IMG। एक समझ लो कि ये पार्टीशन है, दीवार है, जो बाइफरकेट करता है एंड यूजर को और डेवलपर के बीच का। तो अब जब मैं इसके अंदर जाऊंगा, तो ये पूरा जो है, ये डेवलपर वाला काम करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स वाले डेवलपर या फंक्शन कंसल्टेंट, उनमें से डिफरेंट हो सकते हैं, जो फाइनेंस के हो सकते हैं, कुछ MM के हो सकते हैं, वो सब सब यहाँ आएंगे ही, उनको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। ठीक है, MM वाले, फाइनेंस वाले, HR वाले, एवरीवन विल कम हियर एंड देन डू द कॉन्फ़िगरेशंस। तो नॉर्मल जो एंड यूजर होते हैं, जो बिजनेस रन कर रहे होते हैं प्रोडक्शन में, वो यहाँ पर इनका एक्सेस नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। तो SPRO गए। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा यार इसको हटाता हूँ। यहाँ पे मैं डिटेल्स में थोड़ा डालता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओगे। जब आप 2-3 बार आप करना शुरू करोगे ना, नेविगेट, तो आप इतने वेल वर्स्ड हो जाओगे कि आपको दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो कंपनी बना रहा हूँ, SPRO में गया, SAP रेफरेंस IMG में गया, क्लिक किया, देन आई एम गोइंग टू इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। ये इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बाद डेफिनेशन, क्योंकि पहले हम डिफाइन करेंगे, तो डेफिनेशन में जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान से, इस डेफिनेशंस में देख रहे हो आप, अलग अलग मॉड्यूल, फिनेंस का, कंट्रोलिंग का, लॉजिस्टिक्स, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस, मटेरियल मैनेजमेंट, ये सब डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल वाले बंदे यहाँ पर आकर वो काम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो ज्यादातर काम मेरा यहाँ होगा, लेकिन पूरा आर्किटेक्चर बनाने के लिए मुझे फाइनेंस साइड से भी कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेगी। तो मैं डेफिनेशंस के अंदर जा रहा हूँ, और फिनेंशियल अकाउंटिंग में गया। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे जाने के बाद, यहाँ पर आप देख रहे हो डिफाइन कंपनी। ठीक है, डिफाइन कंपनी, ये डिफाइन कंपनी। अब इस डिफाइन कंपनी पे हम यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे, तो अब हम अपना कंपनी डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, हम जो कंपनी मैं जो कंपनी बनाने जा रहा हूँ, ये कंपनी या तो आप न्यू एंट्री करोगे, या तो कॉपी करके करोगे, है ना। तो अगर आप न्यू एंट्री करते हो,
तो पूरा का पूरा फील्ड जो भी इसके सेटिंग्स का वो सब सब ब्लैंक मिलेगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि, और ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस भी है, कि जो एसएपी ने दे रखा है बाय डिफॉल्ट, जो एक तरीके से टेम्पलेट दे रखा है या साँचा दे रखा है, उससे हम कॉपी करके हम अपना बना लें और उस पे मॉडिफाई करेंगे। तो एसएपी ने नॉर्मली जो है वो 1000 दिया हुआ है। ठीक है, किसी ने इसका नाम भी चेंज कर दिया है या समथिंग। लेट्स सी whether this one is looks good or not। ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कंपनी, लेट्स, चाहो तो आप लोग जो बनाना ना वो मेरे वाले से कॉपी करके बना, ठीक है। लेकिन आप लोग वो नाम नहीं देना जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सिस्टम लेगा भी। तो आप लोग अपना इसी से कुछ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग सोच सकते हो। कोई HIR सोच लो, कोई वोल्टास सोच लो, समथिंग लाइक दैट, राइट। सैमसंग कोई सोच लो, कोई LG सोच लो, राइट। लाइक दैट यू कैन क्रिएट योर। बट मैं अभी ये HIR इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि आपने अभी सेल्स ऑर्डर बनाया है, तो आपको काफी इजी हो जाएगा सब कुछ को रिलेट करने के लिए कि आप पहले क्या कर रहे थे और ये चीजें कैसे आया है यहाँ पे। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नाम ऐसा ही। तो मैंने क्या किया कि कंपनी एक बना रहा हूँ, कंपनी एक जैसे टाटा ग्रुप होता है वैसे ही कंपनी है HIR। तो मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, कॉपी करके यहाँ पे हटाया और नाम दे दिया HIR, और इसका नाम दे दिया मैंने HIR, जो भी है HIR ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक। ओके, ओके, ये हटा दिया। ये HIR इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप का इसका मान लो हेडक्वार्टर जहाँ भी है, ठीक है, तो मान लो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, इतना ही अभी रहने देते हैं, इंडिया में ही मैं वो हेडक्वार्टर रखना चाह रहा हूँ मान। तो मैंने HIR का ग्रुप रख लिया। अब ये सेव हुआ, नाउ आई एम सेविंग दिस। अब देखिए ये दिख रहा है, ये क्या है? एनी आइडिया अबाउट दिस? क्या है ये? ये एक पॉपअप है जिसमें हम लोग TR बनाएंगे। अब सवाल है कि TR क्या होता है, तो TR को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। तो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट हम लोग बना रहे हैं और यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं माई प्रोजेक्ट समथिंग वट एवर आई वुड लाइक टू मेक इट, लाइक अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो वो हो सकता है टिकट हो सकता है, या फिर आपका जो ITR नंबर है, जो रिक्वायरमेंट नंबर है वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो मैंने जस्ट ऐसे डाल दिया माई प्रोजेक्ट HIER एंड नाम दे दिया and saving this. Now you can see there is some TR is generated by the system। अब ये TR की कहानी क्या है? ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, क्या होता है कि हम लोग जब भी कुछ बनाते हैं, जो सिस्टम का आर्किटेक्चर होता है वो पहले डेवलपमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी होता है ना? क्वालिटी, डेवलपमेंट हुआ, क्वालिटी हुआ, क्वालिटी में थॉरोली टेस्ट होता है और उसके बाद फिर हमारा प्रोडक्शन जाता है ना? तो डेवलपमेंट में हम लोग जो भी चीजें हैं वो डेवलपमेंट करते हैं, जैसे अभी किया मैंने। जब ये डेवलपमेंट हो जाएगा तो मैं इसको फिर, जो चीजें डेवलप किया वो उसको भेजूंगा ना इस अलग सर्वर में। ये सर्वर कैसा होगा, तो ये जैसे आपने लॉगिन पैड देखा नहीं है, ये वैसा ही एक अलग लॉगिन पैड होगा क्वालिटी का, वैसा ही एक अलग लॉगिन पैड होगा प्रोडक्शन का। तो हमारा जो चेंजेस है, जो अभी मैंने जैसे कंपनी बनाया वो एक TR में चला गया।
अब इस टीआर को मैं जब भेजूंगा क्वालिटी में, तब ये जो फंक्शनैलिटी मैंने डेवलप किया वो क्वालिटी में अवेलेबल होगा। और इस क्वालिटी में हम लोग थॉरोली टेस्टिंग करते हैं, और क्लाइंट को भी बोलते हैं कि आप लोग टेस्ट कीजिए इसको। जब वो इत्मीनान हो जाएंगे, जब उनको लगेगा कि ये मेरी फंक्शनैलिटी वर्किंग है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इट्स वर्किंग फाइन, तभी यहाँ पर सब इकट्ठा होते जाता है, और एक दिन पूरा इकट्ठा हो जाता है टीआर, और एक दिन हम लोग जो है पूजा पाठ करके, यू कैन से, हम लोग इस सारे चीजों को प्रोडक्शन में डालते हैं, और जिस दिन ये प्रोडक्शन में जाता है उस दिन सिस्टम लाइव होता है। ठीक है। तो सेम टीआर, when it will move into production, then it will be live on that production server। लेकिन हमारे साथ हमारा जो सर्वर है, यही मेरा सारे सर्वर यही है, डेवलपमेंट सर्वर भी यही है, क्वालिटी भी यही है, और प्रोडक्शन भी यही। यू कैन एज्यूम लाइक दिस, मतलब जो भी हम डेवलप करेंगे वही उसी सर्वर में ही हम टेस्ट भी कर लेंगे, और ये भी मान लेते हैं कि चलो ये प्रोडक्शन सर्वर है। ठीक है, हम लोग रियल सिनेरियोज में, वैसा सिनेरियोज में काम नहीं कर रहे ना, लाइक कंपनी। लेकिन वहाँ कंपनी में क्या होता है कि वहाँ पे अलग अलग ये सर्वर होते हैं। तो डेवलपमेंट से जो सर्वर से हम लोग टीआर बनाते हैं, जो अभी बना, वो क्वालिटी में जाएगा, थॉरोली टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद जब ये प्रोडक्शन में जाएगा, उस दिन सिस्टम लाइव हो जाएगा, मतलब हमारा ये डेवलप किया हुआ यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा इस सर्वर पे। तो यहाँ से प्रोडक्शन में भेजने से पहले हम लोग यूं ही नहीं जस्ट कॉन्फ़िगर करके भेज देते हैं, हम लोगों को थॉरोली टेस्ट करना पड़ता है। हम लोग 10 तरीके से सेल्स ऑर्डर बना के यहाँ टेस्ट करेंगे कि सब कुछ प्रॉपरली आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ मिसिंग तो नहीं हो रहा है, वो टेस्ट करते हैं। और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो दोबारा फिर हम डेवलपमेंट में फिर उसको करेक्शंस करते हैं और दोबारा भेजते हैं टीआर। तो यहाँ पे टू एंड फ्रो करते रहते हो सकता है। लेकिन वंस फाइनल एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, देन प्रोडक्शन में जाएगा, लाइव में। तो नाउ यू अंडरस्टूड ऑल्सो अबाउट द टीआर। टीआर को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट रिफरेंस। ओके। ठीक है, अभी मैं इतना ही आज के लिए रख रहा हूँ, एंड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स we can connect on 11 o'clock sharp. Is it okay to everyone, right? We are not having class tomorrow, no? No, 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 no. Okay. Tomorrow will be not classes, right? Okay. Monday, what time? Monday at 11 o'clock. Will 11. it work, Okay. right? Because you always wanted to be on 11 o'clock, Yep. right? So, yeah, that's why. The batch which was working just before the 11 o'clock, right? That the guys I have moved into this group. Okay, Okay. so they will also joining in this group because they also enroll it for the ECC and as for HANA also, right? So anyway, I need to do also move these guys together. So that's saving time for me because due to that batch, I was very rushed to join it at 11 o'clock. But now it is good to join me at 11 o'clock. So we can ask them to send these meetings or schedule these meetings at 11 o'clock. We can use this same or something. We will ask them to send these invitations and we can connect at 11. Okay. Okay. No problem. Okay. So अभी आपके पास ये पासवर्ड है ना ईसीसी का? Yes, that same ph7 @ 123. @123, राइट? मैं यहाँ लिख Yes. दे रहा हूँ, जस्ट गो विद दिस सीट एंड यहाँ से यूज कर लेना। एंड माय यूजर आईडी, यू नो व्हाट इज दैट? मुकेश 01, राइट? Case 01. Yeah. So you can use it and try to make it as much as you create the order। जितना आप ऑर्डर बनाओगे ना, उतने अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। Yes. उसका जब ये सब करने लगेंगे ना, ट्रस्ट मी, यू विल बी वेरी फेमिलियर हो जाओगे ये सब सारी चीजों से। ठीक है, इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। अच्छा, ये चीज हो रहा है, ये मेरा क्यों नहीं हो रहा है, व्हाट इज Yeah. मिसिंग, लाइक दैट यू कैन थिंक ऑफ इट। तो मैं अभी थोड़ा धीरे धीरे ग्रेजुअली चल रहा हूँ, बट wherever you have the doubts, don't hesitate to ask me anything, right?
तो अभी फिलहाल आप ECC में, चूंकि यहाँ पे डेटा है नहीं, बनेगा भी नहीं, इसलिए मैं ECC का ये आपको दिया हूँ। तो आपको जब भी मौका मिले, जस्ट प्ले अराउंड टू क्रिएट द O2C साइकिल। आप जितना भी बनाओगे O2C साइकिल, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इवन दो अगर आपको कभी मौका मिलता है तो उस O2C साइकिल में जो फील्ड्स है ना, उसको F1 करके भी पढ़ो। अभी जैसे मैंने ये सब चीजें बता दिया। ओके, Yes. इसके फील्ड में जाइए एंड यू कैन प्रेस F1 एंड रीड आउट व्हाट एग्जैक्टली सेल्स ग्रुप इज मीनिंग। तो अभी आपने तुरंत सीखा है, अगर इसके बारे में पढ़ लोगे तो ये पक्का हो जाएगा। और जब आप कॉन्फ़िगर कर लोगे तब तो ये बिल्कुल कभी भूलोगे ही नहीं, क्योंकि अपने से जब आप करना शुरू करो तो Yes. है आपके पास टाइम, राइट? 3 days है। यस, यू कैन यूज इट एंड ट्राई टू मेक इट ऑर्डर एज मच एज। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल तो क्लास नहीं होगा, आई एम नॉट टेकिंग क्लास टुमारो, बट यस वी कैन कनेक्ट ऑन द मंडे। और मंडे से फिर फुल फ्लेजेस हम पूरा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। ठीक है, Okay. राइट? ओके And Mukesh, ओके, one थैंक query I have for example, like you have created this company HIER, यू। and if we want to create a company here and the product everything, can we also do in ECC or Yeah, we can also do it in ECC, same way. same way? Same way we can do it, same way, so that Okay. you will be also knowing how we can do that. Even Yeah. though when in ECC, if you go in the same path, you will see my configurations over there because I did my configurations from here. That's why you are able to make it this sales order, right? Okay. तो आप वहां से सेम वे में देख पाओगे। ठीक 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 है, है। ठीक है, आप Yeah. इसको ट्राई कीजिएगा। ये दे रखा है, लेकिन वहां पे कुछ डिलीट उलीट मत करना प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल श्योर। ठीक है, वो चीज ध्यान में रखें, क्योंकि कंसल्टेंट जो है वो जो बिल्कुल नए नए होते हैं, वो सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। तो उससे करने से क्या होगा कि एवरी वन विल बी इम्पैक्ट। ओके तो वहां पे इस बात का ध्यान रखिएगा। श्योर श्योर। ठीक है, ठीक है। मनसा, यू हैव एनीथिंग टू आस्क मी, एनीथिंग फॉर मी? No, no, आफरीन, Mukesh. Yeah, no. आफरीन, I will practice those yesterday and the day before yesterday yes, yes, orders. just go with that. If you have anything, just note it down, Yeah. or I will do That one if you thing. have any I I will do will one thing. take help from I others, Sandeep and here, others. yeah. Even if you mutually connect yourself Yeah, in somewhere in some platform like Zoom, and then you can start to doing it. It will be also very helpful for all of you. yeah, Okay. So here I'm putting it one sheet for why? questions, right? Something you are doing it and it comes suddenly off in your mind. Do one thing, just write it your name, numbers, and questions. What exactly you want to ask me? Put it here like this. Yeah, sure. Okay. Mm. So that I'll when I will connect, I will answer. I will try to give that answers to you. Okay. Okay, thank you. All right. Okay. Thank Then you I'm stopping it Mukesh. here, and we will connect on Monday, right? Thank you so Sure much, sure। everyone. Thank you. Yeah Thank thank you. you।